Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and a very good morning. I hope that we have undergone yesterday's lecture, and in case of any query or any questions, I am here to answer all your queries regarding yesterday's lecture. So starting with today's lecture, we will try to cover the remaining part, that is part 2 of unit 37. And unit 37 consists of the viruses that are DNA envelope viruses, herpes virus है, pox virus है और human papilloma virus है. अगर याद रखना है आपने कि herpes virus and pox viruses, these are DNA envelope viruses, while human papilloma virus is a DNA non-envelope virus. We will try to travel on this road. रोड में टर्न्स बड़े हैं, but these are all easy turns. As far as you are listening to the lecture, you are following it timely, so it will, a stitch in time saves time. अगर आप सुन लेंगे इस लेक्चर को एक दफ़ा, फिर उसके बाद go through कर लेंगे बुक पे. Even I have mentioned the unit also, the chapter number also, so just as to facilitate you in the best possible way. We will start our journey with the cytomegalovirus, Epstein-Barr virus and human herpes virus 8. Along with that, we will go through certain brainstorming exercises and we will finish the lecture by discussing some upcoming tasks. The learning outcomes for today's lecture are, by the end of this lecture, we will be able to explain the properties and replication cycle of these 3 viruses. We will be able to define and explain immune evasion, compare the pathogenesis, clinical features, route of transmission and treatment of these 3 viruses along with their lab diagnosis in the microbiology lab, and in the end, our primary duty is to prevent the persons from these all devastating microorganisms. So we will try to outline a preventive plan to save our people from cytomegalo, Epstein-Barr and human herpes virus 8. So could you name the enveloped and non-enveloped DNA viruses? इस पिक्चर में, इस स्लाइड में कुछ वायरसेस हैं जो वाइट कलर से लिखे गए, कुछ वायरसेस हैं जो येलो कलर से लिखे गए. So remember, those written in white color, they are the enveloped viruses. And those that are written in yellow color, they are non-enveloped viruses. So out of these enveloped viruses, we will try to cover 3 of them today. That consists of cytomegalovirus, Epstein-Barr virus and human herpes virus 8. कल हम क्या डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह? Pox viruses, that are the causative agent of smallpox, molluscum contagiosum, और हम अपना वाइंड अप करेंगे कल का लेक्चर विद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज अ नॉन एनवेलप्ड डीएनए वायरस. इसके साथ बाकी रिमेनिंग हमारे रह जाएंगे एडिनो वायरस एंड पैरवो वायरस, दैट विल बी डिस्कस्ड इन ड्यू टाइम इंशाल्लाह. So starting with the cytomegalovirus, we will try to enlist the diseases and properties of this virus. Now cytomegalovirus causes cytomegalic inclusion disease, especially congenital anomalies that are caused in the neonates. Immunocompromised persons में भी ये disease cause करता है. It causes pneumonia in the persons. Heterophil negative mononucleosis करता है, and it is very antigenically different from other members of its family. It has got a single serotype and it forms giant cell. So giant cells ये बनाता है, इसीलिए इसको मेगैलो means एक बड़ी चीज, राइट? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है जैसे, और आपकी मेडिकल में टर्मिनोलॉजीज होती है. मेगैलो मीन्स बिग. So cyto is the cell and megalo means big. So it forms giant cell, due to which it is named as cytomegalovirus. What is the summary of replicative cycle? If you come across a question, the cycle is similar to that of herpes simplex virus. ये हमने पीछे कल के लेक्चर में हमने पढ़ लिया था. अच्छा, अब इसमें होता ये है कि वन यूनिक फीचर है इसका cytomegalovirus का.
एक ये होता है कि जो इसकी होती है ना इमीडिएट अर्ली प्रोटीन्स, सम ऑफ द इमीडिएट अर्ली प्रोटीन्स, ये किससे बनती है? पेरेंटल वायरियन से। पेरेंटल वायरियन के पास होता है मैसेंजर आरएनए। तो जो इसकी इमीडिएट आईईपी इमीडिएट अर्ली प्रोटीन्स हैं वो कहाँ से डिराइव होंगी? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए किसके पास पड़ा हुआ है? वो पेरेंटल वायरियन के साथ अंदर आ रहा है। तो इसका सिर्फ ये एक डिफरेंस होता है herpes simplex virus। What is the mode of transmission? Mode of transmission क्या है cytomegalovirus का? Remember each and every mode in this cytomegalovirus, starting from placenta, birth canal, by feeding the baby through breast milk, exchange of saliva, sexually and intimate contacts. Oh, blood transfusion, another problem. ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब आप देते हैं पेशेंट को कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो रिसीव करते हैं, so cytomegalovirus can persist in the blood and organ transplant। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये सारी चीजें जितने मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये सारे इसके अंदर फॉल करते हैं। स्टार्टिंग विद द पैथोजेनेसिस, लेफ्ट साइड से हम शुरू करेंगे। साइटोमेगालोवायरस एंटर हुआ बॉडी के, अटैच हुआ सेल स्पेसिफिक सरफेस रिसेप्टर्स पे, वायरल एनवेलप ब्रेकअप हुआ, अनएनवेलप्ड हुआ, उसने अनकोटिंग की, वायरल डीएनए रिलीज हो गया होस्ट सेल में, उसके बाद वो होस्ट सेल की न्यूक्लियस में गया, वहां पे जाके नई वायरल प्रोटीन्स बनाई, वहीं पे सारे वायरॉन्स असेंबल हुए, एग्जिट हो गए होस्ट सेल्स पे और वो अपने फाइट करने के लिए तैयार खड़े इम्यून सिस्टम। अब दो इसमें पिक्चर्स आएंगी, या तो साइटोमेगालोवायरस डिजीज हो जाएगी और या वो वायरस लेटेंट रहेगा in some of the body cells. Now where it is going to be hidden and where it is going to be latent, inshallah we will discuss it tomorrow, or by the end of this lecture you will be able to answer this question कि ये कहाँ पे साइटोमेगालोवायरस किन सेल्स में लेटेंट होता है। बाय द वे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हमने कल पढ़ा था, तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कहाँ पे लेटेंट होता है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 कहाँ पे होता है, 2 कहाँ पे होता है, वेरिसेला जोस्टर कहाँ पे होता है? यू हैव टू डिफरेंशिएट एंड रिकॉल देम अकॉर्डिंग टू द वायरसेस एंड देयर पोजीशन ऑफ लेटेंसी। इनफैक्ट द लंग्स, और उसके बाद ये स्टमक एंड इंटेस्टाइन में गैस्ट्रोएंटेराइटिस। There is a thing that is called as immune evasion. ये हमारा आज का सेकेंड लर्निंग आउटकम था, that we were going to define immune evasion. There is a thing that is called as immune evasion. ये हमारा आज का सेकेंड लर्निंग आउटकम था, that we were going to define immune evasion. Now what is immune evasion? इनका एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है जिसको इम्यून इवेशन या इम्यून सिस्टम से इवेड करना कहते हैं, और ये हेल्प करता है ताकि ये लेटेंट स्टेट में बैठा रहे, बॉडी सेल्स के अंदर छुपा हुआ बैठा रहे और जो इम्यून सेल्स हैं उनको नजर ना आए। होता क्या है इसमें, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्टेड सेल्स होंगे और जो असेंबली होती है मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC क्लास 1 और वायरल पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स की, वो बड़ी अनस्टेबल होती है। चूंकि वो अनस्टेबल होती है वायरल पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स और MHC1 कॉम्प्लेक्स, तो वायरल एंटीजेंस डिस्प्ले ही नहीं हो पाते सेल सरफेस पे, और जो किलिंग होनी चाहिए थी साइटोटॉक्सिक आर्मी सेल से वो नहीं होती। उसकी वजह से ये इन्फेक्टेड सेल के अंदर बैठे रहते हैं। उसके अलावा इनके अंदर होता है माइक्रो आरएनए। अब माइक्रो आरएनए वो क्या करता है, वो वायरल प्रोटीन को डिस्प्ले ही नहीं होने देता, ताकि जो हमारे इम्यून सिस्टम की फौज थी, इम्यून सिस्टम की आर्मिड सेल्स थे, वो उनको देख नहीं सकते। और एक इसका और होता है, ये प्रोड्यूस करता है प्रोटीन, और प्रोटीन जो है वो फंक्शन करती है कीमोकाइन रिसेप्टर से। ये कीमोकाइन से बाइंड अप हो जाती है, लिहाजा कीमोकाइन बेचारा अपना फंक्शन भूल जाता है और वो सिग्नल ही नहीं कर सकता होस्ट इम्यून सेल्स को, ताकि होस्ट इम्यून सेल्स की आर्मी आए और साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करे। सो देयर आर 3 मेजर मोड्स ऑफ इम्यून इवेशन। एक तो कॉम्प्लेक्स बहुत अनस्टेबल होता है वायरल पेप्टाइड का और MHC1 का, एंटीजन डिस्प्ले नहीं हो पाते सेल सरफेस पे,
लिहाजा जब एंटीजन नहीं होंगे तो साइटोटॉक्सिक सेल को पता ही नहीं चलेगा कि उसने किल कौन से सेल्स को करना था। माइक्रो आरएनए ये प्रोड्यूस करता है और माइक्रो आरएनए जो है वो वायरल प्रोटीन को डिस्प्ले ही नहीं होने देता। उसके अलावा ये एक और प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि कीमोकाइन रिसेप्टर, कीमोकाइंस को जो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और कीमोकाइन अपना प्रॉपर फंक्शन भूल जाते हैं। तो ये सारी इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स जो हैं ये टी सेल्स को इनहिबिट करने से एक ह्यूमन बीइंग में डेवलप हो जाते हैं और उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं उनके अंदर वो लेटेंट फेज में बैठा रहता है। होस्ट डिफेंसेस इन द ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ सेल mediated immunity and circulating antibodies। इस तस्वीर में भी यहाँ पे इलिस्ट्रेट किया हुआ है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1 वायरल पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है, वायरल एंटीजन सेल पे डिस्प्ले ही नहीं होगा, किलिंग साइटोटॉक्सिक सेल्स अब उसको ढूंढ रहे हैं टी सेल्स लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, माइक्रो आरएनए की प्रोडक्शन हो रही है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। Now imagine a child or a neonate that has been brought to you by microcephaly and seizures, and by the age he will grow up to 6 months, 8 months, 10 months, 1 year, तो उसमें उसके पेरेंट्स आपको बताएंगे कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, हम उसे आवाज देते हैं या कि कोई चीज उसमें माइलस्टोन्स डेवलप होते हैं, हम चुटकी बजाते हैं, हम कोई क्लैपिंग करते हैं, बट he or she doesn't respond to that stimulus. So imagine a child that is microcephaly, सीजर्स हैं। अव्वल तो माइक्रोकेफेली जो बच्चे होते हैं वो पहले ही उनमें मोर्टेलिटी रेट होता है, दे आर नॉट गोइंग टू रीच इवन द एज ऑफ हायर ईयर्स। डेफनेस है, उसके बाद परपरा, जॉन्डिस, ब्लूबेरी मफिन्स भी इनको कहते हैं। इट इज नॉट दैट ब्लूबेरी मफिन्स, अब आपके जहन में आ रहे होंगे वो छोटे छोटे कप के मफिन्स बने हुए एंड ब्लूबेरीज एंड चेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज एंड रसबेरीज, but it is another painful aspect of our medical field. Thrombocytopenia होगा, on lab investigations hepatosplenomegaly can be felt clinically, mental retardation का एक बहुत बड़ा cause है cytomegalovirus और यूरिन में excrete करता है for years and years. रिमेंबर मैंने आपको पीछे बताया था लेटेंसी होती है, एक मोनोसाइट्स में और एक ये किडनी के अंदर छुप के बैठे रहते हैं, तो जितना अर्सा किडनी में छुप के बैठे रहेंगे यूरिन में एक्सक्रीट होते रहेंगे। इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी फ्रंटल व्यू ऑफ द पेशेंट्स हेड विद प्रोप्टोसिस, डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज एंड ट्रायंगुलर माउथ। आप इसका नेजल ब्रिज देखें, प्रोप्टोसिस देखें और ट्रायंगुलर माउथ देखें। सेकेंड पिक्चर में ये जो मैंने आपको बताया था इंफ्यूजन बॉडीज, so these are called as owl eye infusion bodies. ये infusion bodies इंट्रान्यूक्लियर होती हैं और इनकी ओवल शेप होती है जैसे आउल की दो आईज हों। So this is the clinical picture that you can come across with a patient of cytomegalovirus disease. उसके अलावा ये क्या करता है, in immunocompetent adults it can cause heterophil negative mononucleosis. What is heterophil negative mononucleosis? Immunocompetent persons में होता है and the disease is characterized by lethargy and fever. जब हम उसका blood smear बनाएंगे तो we are going to see abnormal lymphocytes. उसका जब हम examination करेंगे there are signs and symptoms of hepatitis, colitis and retinitis. These are the signs and symptoms of heterophil negative mononucleosis in immunocompetent. While in immunocompromised persons, the cytomegalovirus is going to cause pneumonitis, inflammation of the esophagus, inflammation of the liver cells, and they also causes disease in the patients of renal and stem cell transplants. In patients of AIDS, it causes colitis, diarrhea, nausea, vomiting, retinitis and anemia. रेटिनाइटिस जो कॉज करते हैं एड्स के पेशेंट में तो इट कॉजेज ब्लाइंडनेस, और एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया along with all these things they may occur. How will you proceed for the lab diagnosis? Which samples you are going to take? इसमें हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं? We can take the tissue samples, we can take body fluids,
स्पाइनल फ्लूइड ले सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड्स ले सकते हैं। वायरस को हम स्पेशल शेल वॉइल्स में कल्चर करते हैं एंड इन एडिशन टू दैट हम करते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट और ये इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट डिटेक्ट करती है इमीडिएट अर्ली एंटीजेंस को। इमीडिएट अर्ली एंटीजेंस कौन से होंगे? साइटोमेगालोवायरस में होंगे। ये जो शेल वॉइल कल्चर है ये 72 आवर्स में रिजल्ट दे देता है और उसके अलावा ये डिटरमिन करता है ड्रग ससेप्टेबिलिटी को गैनसाइक्लोवीर के लिए। गैनसाइक्लोवीर इज अ ड्रग, तो ये टेस्ट मदद करता है कि देख लें हम साइटोमेगालोवायरस ससेप्टेबल है गैनसाइक्लोवीर के या नहीं। इन एडिशन टू दैट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट हो गया, पीसीआर हो गया हमारा एंड इंक्लूजन बॉडीज इन द जॉइंट सेल्स। अब ये कहाँ से लेंगे? हम यूरिन सैंपल लेंगे, टिश्यू सेल्स लेंगे, वहां पे ये हमें जॉइंट सेल्स नजर आएंगे और उनके अंदर आउल आई इंक्लूजन बॉडीज नजर आएंगी। IgM एंटीबॉडीज लेवल भी हम चेक कर सकते हैं एंड लास्टली वी आर गोइंग टू चेक साइटोमेगालोवायरस एंटीजीनीमिया। मेजर करते हैं हम PP65 को और ये PP65 ब्लड ल्यूकोसाइट्स पे लगे होते हैं। इम्यूनोफ्लोरेसेंट ऐसे यूज करेंगे, उसकी मदद से हम ल्यूकोसाइट्स पे PP65 की प्रेजेंस देख सकते हैं। Now coming to the patient who is suffering from cytomegalovirus disease, we can prescribe ganciclovir, foscarnet, cidofovir. What preventive steps can be taken? This we will start our lecture by tomorrow. कि कौन से preventive steps हैं जो कि हम ले सकते हैं। और साइटोगैम जो है वो भी यूज होती है। साइटोगैम क्या है? साइटोगैम प्रिवेंट करती है और ये हाई टाइटर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रिपरेशन है। So it prevents the disseminated infections in organ transplant patients. ये usually ये यूज नहीं होती है, ये सिर्फ प्रिवेंट करती है organ transplant patients में ताकि disseminated infection का चांस ना हो। From today's topics, ये जो हमारा रोड मैप था उसमें कुछ brainstorming exercises भी हमने डाली थी। So from today's topic, I request you to fill fill in the blanks. The virus transmitted by blood is, ये इन्हीं तीनों वायरस में से कोई एक होगा। Cytomegalovirus remains latent in कौन से cells हैं? Cytomegalovirus shows inclusion bodies named as dash. Epstein-Barr virus binds to dash receptors and remain latent in dash. EBV is responsible for certain cancers like so and so. And Kaposi sarcoma is seen in patients of dash and is caused by the virus. So by the end of the lecture, we will be able to fill in the blanks correctly. Coming to our second part for today, that is Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus discovered हुआ था in 1964 and there were two friends. एक का नाम था Epstein, एक का नाम था Barr. So, है ना मजे की बात, इंटरेस्टिंग बात है कि दो फ्रेंड्स ने मिलकर एक वायरस को डिस्कवर किया है। So one is Epstein and one is Barr, and it is very earlier in जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तो 1964 की ये बात। Epstein-Barr virus causes infectious mononucleosis, Burkitt's lymphoma cause करता है, B cells lymphoma, nasopharyngeal carcinoma and hairy leukoplakia। मेन सिम्टम्स क्या होते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के? स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड, सेंट्रल हो सकते हैं जिसमें फैटीग है, मलेज, द पेशेंट में कम टू यू विद लॉस ऑफ एपिटाइट एंड हेडेक। विजुअल में फोटोफोबिया होगा, उसको रोशनी से तकलीफ होगी, टॉन्सिल्स की स्वेलिंग हो सकती है, थ्रोट में सोरनेस एंड रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन, लिम्फ एडिनोपैथी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा। सो द पेशेंट में कंप्लेन टू यू ऑफ कफ, सिस्टेमिक साइन और सिम्टम्स में फीवर, चिल्स, बॉडी एक्स एंड पेन्स एंड माइल्जिया आएगा, स्प्लीन एनलार्जमेंट होगी, एब्डोमिनल पेन एंड गैस्ट्रिक में नोजिया एंड वॉमिटिंग। Regarding the important properties, similarly structurally and morphologically, तो ये बाकी जो हम फैमिली डिस्कस कर रहे हैं हर्पीस वायरस से ही ये रिजेंबल करता है, बट एंटीजेनिकली इट इज डिफरेंट। इसके ऊपर कोई 4-5 किस्म के एंटीजन होते हैं। अब एंटीजन कौन कौन से होते हैं? एक है वायरल कैप्सिड एंटीजन, दूसरा है न्यूक्लियोटाइड एंटीजन, तीसरा है
और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट में ज्यादा यूज होता है। एक है अर्ली एंटीजेंस, एक है एप्सिन बार न्यूक्लियर एंटीजेंस, एक है लिम्फोसाइट डिटरमिन्ड मेम्ब्रेन एंटीजेंस और लास्टली है वायरल मेम्ब्रेन एंटीजेंस। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीजन इनसाइड दिस वायरस। कौन कौन से थे? वायरल कैप्सिड एंटीजन, अर्ली एंटीजेंस, एप्सिन बार न्यूक्लियर एंटीजन, lymphocyte determined membrane antigen and viral membrane antigen। ह्यूमंस इसके नेचुरल होस्ट्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स को जाके मेनली ये अटैक करता है। फेरिंग्स को अगर जैसे पिछली तस्वीर में हमने देखा था सोर थ्रोट करेगा अगर फेरिंग्स इन्वॉल्व होगा, और ये भी लेटेंट फेज में जाता है। Which receptor Epstein-Barr virus binds to? So Epstein-Barr virus binds to the C3 component of the complement system और बीटा लिम्फोसाइट्स के ऊपर ये एंटर होता है और वहाँ रिसेप्टर इसका C3 कंपोनेंट होता है, वहाँ से जाके ये बी लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है। सो ऑन द राइट साइड CEB वायरस इन्फेक्शन आई, वायरस आया, बी सेल्स जो थे इमेच्योर फॉर्म में, नॉर्मल बी सेल डिफरेंशिएशन होनी थी, एंटीजन टी सेल हेल्प आनी थी, उसके बाद सर्वाइवल सिग्नल्स आने थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वायरस ने उसको अफेक्ट किया, डिफॉल्ट प्रोग्राम हो गया और ये लॉन्ग लिव जो है ना ये लेटेंसी प्रोग्राम में चले गए। लेटेंसी में ये बी सेल्स में, बी लिम्फोसाइट्स में रिजाइड कर गए। हाउ डज द ट्रांसमिशन अकर्स? रेप्लिकेशन साइकिल इसकी वैसी है जैसी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की थी। बीटा लिम्फोसाइट्स पे जाके बस एक्ट करेगा, C3 कंपोनेंट पे करेगा और अगेन सारे रेप्लिकेशन स्टेप्स वही हैं इसके। हाउ डज द ट्रांसमिशन अकर्स? इट प्राइमली अकर्स बाय द एक्सचेंज ऑफ सलाइवा। ब्लड से बहुत रेयर होता है ये, लो सोशियोइकोनॉमिक ग्रुप को अफेक्ट ज्यादा करता है और उसके बाद फिर ये स्टार्ट कहाँ से होगी? इन्फेक्शन ओरोफेरिंग्स पे स्टार्ट होगी, वहां से ये ब्लड में जाएंगे और उसके बाद बी लिम्फोसाइट्स को जाके इन्फेक्ट करेंगे। राइट? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स देखे जा सकते हैं जिनको हम कहते हैं एटिपिकल लिम्फोसाइट्स। तो एटिपिकल लिम्फोसाइट्स जो हैं ये ब्लड स्फीयर में देखे जा सकते हैं और ये होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अब जो एप्स्टाइन-बार वायरस है वो इट रिमेन्स लेटेंट विद इन द बी लिम्फोसाइट्स। अगर हम पेशेंट में डिटेक्ट करें IgM एंड IgG, IgM करता है डेमोस्ट्रेट करता है एक्यूट इन्फेक्शंस को और IgG जो है वो डेमोस्ट्रेट करेगा प्रायर या प्रीवियस इन्फेक्शंस को। उसके अलावा इसमें एक हम हेट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट भी करते हैं। व्हाट आर हेट्रोफिल एंटीबॉडीज टेस्ट? इसमें ये करते हैं पेशेंट का ब्लड लेते हैं जिसके अंदर IgM एंटीबॉडीज होंगी एंड दे विल बी अगेंस्ट वायरल एंटीजेंस। जब हम उनको शीप और हॉर्स RBCs के साथ जब हम उनको मिलाते हैं और रिएक्टिविटी होती है सो देयर विल बी एग्लूटिनेशन। हेट्रोफिल एंटीबॉडी या मोनोस्पॉट टेस्ट की एक तो सेंसिटिविटी जो होती है वो फर्स्ट वीक के बाद 90 to 95% होती है, लेकिन उसके बाद जो जो टाइम गुजरता जाता है तो इसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज होती जाती है। स्पेसिफिसिटी 94% है और फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाता है। ये साइटोमेगैलोवायरस में होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में होता है, एक्यूट ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन में होगा, मैलिग्नेंसी एंड ऑटोइम्यून डिजीजेस। And it is no longer recommended by the CDC because false negative भी आते हैं इसके और false positive भी आते हैं। How the patient will be coming to you? What will be the clinical features of the patient that is suffering from Epstein-Barr virus? हम अगर पिछली साइड पे चले जाएं जहाँ पे उसको सिस्टेमिक भी हो रहे थे और फिर हेड से और फेस से स्टार्ट करें, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, GIT हो रहा है, सो दीज आर ऑल द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दोज ऑर्गन्स। स्टार्टिंग फ्रॉम एनोरेक्सिया एंड लेथार्जी, पेशेंट आपको बताएगा कि उसे थकन होती है, उसे काम सही नहीं होता, देयर इज फीवर, हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट में भी प्रेजेंट, लिम्फेडेनोपैथी, रीजनल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होगी। On palpation of the abdomen, you may feel the splenomegaly, hepatitis और encephalitis के साइन और सिम्टम होंगे। जब आप टेस्ट कराएंगे लिवर फंक्शन टेस्ट तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर में बी डेमोन्स्ट्रेटेड। एक ये करता है X-linked lymphoproliferative syndrome। So
एक्स लिंक्ड लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम भी करेगा और एक ये करेगा हेरी ल्यूकोप्लेकिया। अब हेरी ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है? ये हेरी सरफेस हो जाती है लेटरल सरफेस ऑफ द टंग। अच्छा, एक्स लिंक लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम ये किस में करता है? ये जिनमें होती है इनहेरिटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेज होती हैं, उनमें ये करेगा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की बड़ी प्रोग्रेसिव फॉर्म देखी जाती है और ये बड़ी जल्दी जल्दी डिसेमिनेट करती है। तो एक्स लिंक लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम इनहेरिटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, चिल्ड्रन में होता है जिसमें इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस ज्यादा इंटरवेन करता है। The patient may suffer from hepatitis and signs and symptoms of encephalitis, splenic rupture. Splenic rupture जो है वो स्पोर्ट्समैन जो लोग होते हैं, जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल आके लगी है, एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है इसकी स्प्लेनोमेगाली की, तो उन पेशेंट्स में ये स्प्लेनिक रप्चर भी हो सकते हैं। पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है जिन लोगों को सॉलिड ऑर्गन्स दिए जाते हैं या बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, उनके अंदर ये बी सेल लिम्फोमा कॉज कर सकता है आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ऑर्गन्स। Hepatitis, Guerin-Epstein-Barr virus is associated with certain cancers and they are named as Burkitt's lymphoma, nasopharyngeal carcinoma and Hodgkin's lymphoma. How will we be proceeding with the lab diagnosis of the patient suffering from Epstein-Barr virus? Hematological जब blood smear बनाएंगे, ये देखें atypical lymphs हैं। इम्यूनोलॉजिकल हम करेंगे हेट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट, मोनोस्पॉट टेस्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे, आईजीएम और आईजीजी जो है वो डोमिनेट करेंगी कि करंट इन्फेक्शन है या प्रायर इन्फेक्शन है, प्रेजेंट है या पास्ट इन्फेक्शन है, देन वी कैन प्रोसीड टू द पीसीआर। द ट्रीटमेंट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ एसाइक्लोविर। एसोसिएशन इसकी होती है कैंसर्स के साथ और उसका अंडरलाइन कॉज क्या है? ट्रांसलोकेशन ऑफ c-MYC ऑन्कोजीन करता है। अब एप्स्टीन-बार वायरस का डीएनए या जो न्यूक्लिक एसिड है इसका ट्यूमर सेल्स में देखा गया है। कौन से ट्यूमर सेल्स में? नेसोफेरेंशियल कार्सिनोमा में, थाइमिक कार्सिनोमा में और बर्किट्स लिम्फोमा में। So there is an evidence that it is associated with cancers. Coming towards end of our road for today's lecture in microbiology, human herpes virus 8, that is the causative agent of Kaposi's sarcoma in the patients of AIDS. Human herpes virus 8 discover हुआ था 1994 में. It causes Kaposi's sarcoma, especially in the patients of AIDS, और sexually transmitted सलाइवा के थ्रू ट्रांसमिट होता है और ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। It resembles with one of these viruses. एक होते हैं lymphotropic herpes virus, एक होते हैं neurotropic herpes virus. What are lymphotropic herpes virus and what are neurotropic herpes virus? This we will discuss tomorrow. You have to find out the answer. This is given in your unit 37. और ये जो वायरस है ह्यूमन herpes वायरस, ये किससे रिजेंबल करेगा? लिम्फोट्रोपिक से करेगा और न्यूरोट्रोपिक से करेगा। What is the mechanism of transformation towards the malignancy? इसमें क्या होता है? LANA suppresses retinoblastoma and p53 tumor suppressor proteins. इनके अंदर एक चीज होती है जिसको कहते हैं LANA, प्रोटीन होती है ये, और इसको हम कहेंगे लेटेंसी एसोसिएटेड न्यूक्लियर एंटीजन। लाना जो है वो इनएक्टिवेट कर देता है रेटिनोब्लास्टोमा एंड p53 ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स को, जिसकी वजह से क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी एपिथेलियल सेल्स की टुवर्ड्स मैलिग्नेंसी। और Kaposi's sarcoma is the malignancy of vascular endothelial cells of the body. So the mechanism of malignant transformation consists of LANA. What is LANA? It is a protein that is encoded by human herpes virus 8. और इसको क्या कहते हैं? Latency associated nuclear antigen.
ये इनएक्टिवेट कर देता है आरबी जीन को और p53 ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स को, जिसकी वजह से मैलिग्नेंसी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है एंडोथेलियल सेल्स की। वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, सॉरी इसमें एक मिस्टेक है, वस्कुलर एंडोथेलिया सेल्स मैंने लिखा है, एल मैं खा गई हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स में क्या चीजें होती हैं? दे कंसिस्ट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स एंड स्पिंडल शेप्ड सेल्स। सो ये जो कैपोसिस सार्कोमा है, एड्स के पेशेंट में मैलिग्नेंसी कर देगा वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स की, उनके अंदर स्पिंडल शेप सेल्स पड़े हुए होंगे, एरिथ्रोसाइट्स होंगे, लेजन्स जो होंगी वो रेडिश से पर्पल हो सकती हैं, फ्लैट भी हो सकती हैं, नोडुलर भी हो सकती हैं, दे मे बी प्रेजेंटेड एट मल्टीपल साइट्स। Now this virus, it causes primary effusion lymphoma of B cells. B cells का एक और ये लिम्फोमा कॉज करते हैं, that is named as primary effusion lymphoma. How will you proceed for lab diagnosis? What samples you are going to collect or order your staff to be collected? कौन सी हम lesions लेंगे, कौन से हम टेस्ट करेंगे, PCR करेंगे, what will be the treatment depending upon the stage of the disease? Either we are going for a surgical excision of these multiple lesions, we are going to treat the patient with radiation or chemotherapy, or alpha interferon will be helpful in treating our patient. And what is the role of heart? And what is heart? That is highly active antiretroviral drugs that can be used in the patient of AIDS. So, highly active antiretroviral drugs. It depends upon the stage of the disease, what organs are being involved and what stage the patient is at. So, according to that thing, we are going to decide about the excision, radiation, chemo, alpha interferon or heart therapy. So coming towards the end spot of our journey today in the lecture of microbiology, we will try to tabulate the following aspects. You all are very dear and near to me and I am telling you sincerely, अभी से ये tabulation की forms और compare and contrast जितना अच्छा आप करेंगे अपने आप को practicize, उतनी अच्छे आप तरीके से MCQs भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस भी एंड वाइवा क्वेश्चंस भी, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी इज अ वॉलेटाइल सब्जेक्ट। जब आप अपनी बुक्स ओपन करेंगे, जब आप लेक्चर सुनेंगे, लेक्चर गो थ्रू करेंगे, सो यू विल बी हैविंग अ फीलिंग दैट या आई हैव मेमोराइज्ड इट, बट द मोमेंट we are going to close the books and close the laptops and lectures, everything is going to be jumbled up in our minds. लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन माइंड को अल्लाह ताला ने बहुत कैपेसिटी दी हुई है, इसको हम कंस्ट्रक्टिवली यूज करेंगे तो सारी चीजें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती जाएंगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जब हम बुक खोल के बस बंद कर देते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, थोड़ा सा लेक्चर सुन लेते हैं एंड दैट्स इट। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जब हम उसको डीपली स्टडी करते हैं, अपने हाथ से नोट्स बना सकते हैं, हम टेलीफोन पे इलेक्ट्रॉनिकली डिस्कस कर सकते हैं अपनी कोलीग से, टीम बेस्ड लर्निंग करते हैं और हम सुनते हैं, लिसनिंग स्किल्स करते हैं, बोलते हैं, उससे हमें चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। सो व्हाट आई मे रिक्वेस्ट टू यू as my very dear student is that try to tabulate the following aspects on a page. आप बेशक अपने लैपटॉप पे कर लें सॉफ्ट कॉपी में, आप हार्ड कॉपी में अगर इफ यू आर गोइंग टू मेंटेन अ रजिस्टर यू कैन डू इट इन योर हार्ड कॉपी। And what features you are going to compare and contrast is they consist of morphology, replication cycle, route of transmission, pathogenesis, clinical features, lab diagnosis and treatment and preventive aspects of these three viruses. अब जब आपके सामने ये क्वेश्चन इस तरह आएगा और अगर आपने अपने हाथ से लिखा हुआ होगा कि साइटोमेगालोवायरस की मॉर्फोलॉजी क्या थी, डीएनए एनवेलप था, नॉन एनवेलप था, डबल स्ट्रैंडेड था, सिंगल स्ट्रैंडेड था, आरएनए था, हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड था, सर्कुलर था, लीनियर था या व्हाटएवर। रेप्लिकेशन साइकिल उसकी कहाँ पे हो रही थी, वो सेल में कैसे एंटर हुआ, उसने रिसेप्टर कौन सा पकड़ा,
उसके बाद उसके अंदर इन तीनों वायरसेस की हम एज ए जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं कि कौन से रिसेप्टर्स को वहां जाके उन्होंने फ्यूजन की, कहाँ पे जाके उन्होंने अनकोटिंग की, फिर इमीडिएट अर्ली प्रोटीन्स बनी, अर्ली प्रोटीन्स बनी, लेट बनी या नहीं बनी, न्यूक्लियस में ये सारा कुछ हो रहा था या साइटोप्लाज्म में हो रहा था, उन्होंने अपना एनवेलप कहाँ से एक्वायर किया, किस जगह पे जाके वो असेंबली में खड़े हुए, कहाँ पे वो लाइन अप हुए, कहाँ से उनके एनवेलप आए और किस तरह सेल से लाइसिस के थ्रू वो बाहर निकले। रिगार्डिंग रूट ऑफ ट्रांसमिशन, साइटोमेगालोवायरस किस रूट से फैल रहा था, एप्स्टीन बायर वायरस का क्या रूट था, एंड ह्यूमन हर्पेस वायरस 8 ने कौन सा रूट पकड़ा था। रिगार्डिंग पैथोजेनेसिस, obviously depending upon the route of transmission, depending upon the entry into multiple organs, pathogenesis आ जाएगी इन तीनों वायरसेस। उसके बाद जहां जहां जो ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है वहां पे क्लिनिकल फीचर्स के साथ आपके पास आउटडोर में या इमरजेंसी में पेशेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट। नाउ हियर लाइज योर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड यू नो कि कितने आप इंटेलिजेंट हैं एंड हाउ मच क्रिएटिव यू आर, बिकॉज एट दिस टाइम हमारी थोड़ा सा ये अब डिस्टेंस गैप आ गया है, कम्युनिकेशन गैप आ गया है। इफ आई वुड हैव बीन एट योर ऑब्वियसली फेस टू फेस अगर हमारी होती, मैंने आपको पहले भी अपने नोट्स भी दिखाए हुए हैं, सर्टेन एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। अब यहाँ पे आपका डिपेंड करता है कि हाउ स्मार्ट यू आर एंड हाउ क्रिएटिव यू आर, किस तरह आप अपनी माइंड मैपिंग बना सकते हैं, कैसे आप 3 डिफरेंट फिगर्स में या 3 ग्राफ्स में या किसी इलस्ट्रेटेड फॉर्म में इसको आप अच्छे से फॉर्म में चार्ट फॉर्म में बनाएंगे ताकि आपको मेमोराइज करने में आसानी रहे। और जब आपके सामने पेपर आए या वाइवा क्वेश्चन में मैं आपसे एकदम से पूछूं कि आउल आई इंफ्लोजन्स किस में होती हैं, सो यू आर गोइंग टू आंसर मी इमीडिएटली। या व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ कैपोसिस सार्कोमा, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस किस में होता है, कौन सा वायरस है जो कि साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करता है, कौन कौन से वायरसेस हैं जो न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं, कौन से वायरस हैं जो एनवेलप लेते हैं अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। कमिंग टू द लैब डायग्नोसिस, साइटोमेगालोवायरस में कौन से हमने सैंपल्स कलेक्ट करने, अपने स्टाफ को क्या हमने ऑर्डर देना है, एप्स्टीन बायर वायरस में हम क्या क्लिनिकली डायग्नोस कर रहे हैं या कोई स्पेसिफिक है इसकी लैब डायग्नोसिस, ह्यूमन हर्पेस वायरस 8 में हम क्या कर रहे हैं। Now regarding the treatment of those patients who are sitting in our outdoors and emergencies and indoors, what treatment plan we are going to give to them, what treatment and what prevention कैसे करनी है साइटोमेगालोवायरस की ताकि ट्रांसमिशन ना हो, एप्स्टीन बायर वायरस की ट्रांसमिशन ताकि मिनिमाइज हो, ह्यूमन हर्पेस वायरस 8 को एक तो पहले ही पेशेंट बेचारा एड्स का है, उसके ऊपर से उस पर कैपोसिस सार्कोमा भी हो गया, जो मल्टीपल वेसिकल्स हैं, मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब वो रेडियोथेरेपी कराए, कीमो कराए, सर्जिकल एक्सिशन कराए या हार्ट थेरेपी। तो अगर आपको टेबुलेटेड फॉर्म में होगा, आपके हाथ से लिखा हुआ होगा, आपकी नजरों से एक दफा ये लिखा हुआ होगा, एंड इफ यू विल रिलेट इट विद सर्टेन, यू नो दिस इज कॉल्ड एज टैगिंग। आप लोगों ने डाइवो में भी सफर किया है, बायर भी सफर किया है, तो सूटकेस पे अगर हम येलो कलर का, रेड कलर का टैग बांध लें, दिस इज कॉल्ड एज एनकोडिंग या टैगिंग। उससे ये होता है कि जब आपका बेल्ट पे सारा सामान आ रहा होता है ना, लगेज आपका जो आपने लिया हुआ होता है, हैंड कैरी की मैं बात नहीं कर रही, लगेज की बात कर रही हूँ जो बुक कराया हुआ है, दूर से सूटकेस हो जो है वो मेरा ब्लैक कलर का, उसके ऊपर पर्पल रिबन बंधा हुआ है, दूर से मुझे नजर आ जाता है, मुझे एक एक चीज नहीं देखनी पड़ती। सो try to you know maintain those exercises in your routine work also। अगर आप इसको टैग कर लेंगे, एक पेशेंट आप अपना बना लें कि एक पेशेंट मेरे पास आया साइटोमेगालोवायरस के साथ, उस पेशेंट का नाम ये था, उसको ये साइन और सिम्टम थे और मैंने उस पेशेंट को ऐसे ट्रीट किया, ऐसे मैं उसको लैब में डायग्नोस किया। इसी तरह एक पेशेंट एड्स का था, उसको ये साथ ह्यूमन हर्पेस वायरस 8 डेवलप हुआ, रेप्लिकेशन वहां हुई इसकी, इसके अंदर ये मॉर्फोलॉजिकल इसके अंदर चीजें थी, ऐसे पेशेंट प्रेजेंट हुआ और मैंने उसको ऐसे ट्रीट किया। और एप्स्टीन बायर वायरस का जब पेशेंट मेरे पास आया उसके अंदर मैंने ये चीज देखी, लैब डायग्नोसिस ऐसे की, एंड देन आई सक्सीडेड इन ट्रीटिंग द पेशेंट इन दैट वे। This will create a confidence, a sense of decision making in you and a sense of responsibility, जो हम सब की है कि our primary aim is to provide better health care to our human beings and our population and mission।
So stay blessed with all of this. Thank you so much for your time. Questions are ready for you. देखते हैं इसमें डले नहीं डलेंगे. अच्छा नहीं डलेंगे. Task for tomorrow, that is the 3rd of June, inshallah, part 3, and the final part of unit 37 consists of smallpox virus, molluscum contagiosum and human papilloma virus. थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का सेशन हम इसमें कर लेंगे इंशाल्लाह ताला. And with an end, so see how much journey we have traveled until now. रोड देखें अच्छी हो रही है, शाम का वक्त हो रहा है, आसमान का कलर बड़ा अच्छा है. Keep going, everything you need will come to you at the perfect time. With this, I wish you best of health and spirits. Stay blessed.